Well, we're heading right back to the protests that are taking place in Delhi outside Chief Minister Arvind Kejriwal's residence. What you see on your screen right now are MCD workers who are protesting outside Kejriwal's residence. This protest, of course, is over the non-payment of salaries as well as arrears. At the moment, of course, these protesters are saying that they will go on an indefinite strike starting February if their dues are not paid. At the moment, of course... और 3-3, 4-4 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, टाइम पे उनकी फीस नहीं पहुंच रही है और जैसे तैसे करके घर का खर्चा चला रहे हैं, कर्जा वर्जा लेके चला रहे हैं और लेनदार भी जो है सर पे आके खड़ा हो जाता है, भाई तुम्हारी तनख्वाह क्या हुआ है, हमारा कर्जा क्यों नहीं चुका रहे। उनसे भी हम ज्यादा परेशान हैं, अगर सबसे ज्यादा परेशान तो हम इनसे हैं। Well, Vijay Kao is reporting from Delhi. Vijay, the other part of this protest also is the fact that Delhi could perhaps face an unprecedented breakdown of civic services if the Delhi government isn't able to deal with this crisis. Well, exactly, and that is the biggest fear, because last time around when workers of the East Delhi Municipal Corporation, which is one of the 3 municipal corporations in Delhi, had gone on strike demanding keeping the same set of demands, they had in fact, as a mark of protest, left garbage on the streets of East Delhi, which had created a lot of problems related to sanitation and other cleanliness issues. This time around, these workers are saying that they will do the same in entire Delhi. They are also saying that today they are protesting outside the Chief Minister's residence. From tomorrow, they will in fact be escalating their protest. And one day, each minister or the Delhi government will have to in fact face a protest outside his house. And this time, the protest will not just be limited to workers of the MCD chanting slogans outside their house, but also garbage will in fact be dumped in front of their houses. So therefore, this could in fact turn out to be quite ugly, because if sanitation workers go around the city throwing garbage, this could also create a cleanliness issue and also other issues with respect to the residents of whichever area that is being targeted by these MCD workers. सीएम केजरीवाल साहब बैठे इसमें, दिल्ली के तीनों मेयर बैठे हैं, दिल्ली के तीनों कमिश्नर बैठे हमारे साथ में। हम साबित कर रहे हैं कौन दोषी इसके अंदर है, और जो दोषी होगा उसको किसी की मदद बख्शा नहीं जाएगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय। प्रोटेस्ट करने आप लोग फिर आए हैं सड़कों पर, कूड़ा कचरा फेंकेंगे और जनता को तकलीफ देंगे, हमेशा बताएं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज हमें दिल्ली नगर राजधानी में रहते हुए 4थी बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। हम जो हमारी बेकसूर जनता है उनसे माफी चाहते हैं, उनसे भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि जहां जहां उनके सोर्सेज है, अपने सोर्सेज से सीएम साहब के पास में जाके, पीएम साहब के पास में जाके, निगम कमिश्नर के पास जाके वहां भी गुहार लगाई जाए, ताकि ऐसी विकराल हड़ताल का सामना ना करना पड़े लोगों को। और देखिए, हड़ताल पे सड़कों पर उतरने का केवल एक ही मकसद है कि अभी तक हमारा वेतन नहीं मिला है। हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 4-4 महीने का वेतन नहीं मिला है, ट्यूशन के बच्चों की फीस नहीं मिली है, बहुत सारी हमारी डिमांड्स है जो पेंडिंग ऐसी कैसी ही हैं। देखिए, निगम कहती है कि जी हमारी खस्ता हाल हो चुकी है, निगम हमें, दिल्ली सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी निगम की जिम्मेदारी है, निगम को मेरे अंडर में कर दो। अब ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि निगम को अंडर में करें। हमें केवल एक बात पता है, जब दिल्ली हमारी यूनिफाइड थी, एक हुआ करती थी, तो उसमें साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसे दिया करती थी। लेकिन अब ट्राइफरकेशन के बाद दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी है कि निगम को सहायता करे। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। 2014-15 में कितनी बार हड़ताल की है आप लोगों ने? 2014-15 में ये समस्या थी या नहीं थी? देखिए, 2014 में हाँ 15 से आनी शुरू हुई है। 15 को पहले 2013-14 में ये समस्या, हाँ, जब से दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी है तब से ज्यादा इफेक्टेड है हमारे सारे कर्मचारी। इन्होंने अपने स्वार्थ के मारे, दोनों पार्टियों के आपसी रंजिश के मारे हमारा कर्मचारी हमारे साथ सभी डिपार्टमेंट मिल चुके हैं। कितना पैसा आप लोगों को अब तक मिला है? क्योंकि एमसीडी कमिश्नर का एक एफिडेविट है जो कह रहे हैं कि सरकार से जो बकाया पैसा है वो सारा मिल चुका है। क्या एमसीडी कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि ये कमिश्नर साहब के कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर उन्हें पैसा मिला तो फिर हमें क्यों नहीं दिया गया? वो पैसा कहाँ चला गया? तो क्या सभी मेयर्स के खिलाफ, क्योंकि एमसीडी कमिश्नर आपके अंडर आते हैं, हाँ, उनके घर भी कूड़ा हम एक गुजारिश ये करना चाहते हैं कि जैसे सीएम साहब ने कहा है कि तीनों कमिश्नर ने हमें लिख के दिया है, अगर वाकई में सच्चाई है तो क्यों ना हमारी मोर्चे की एक बैठक बुला के उसको दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, और जो भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे निगम के मेयर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, कोई भी हो इसके अंदर। ईस्ट दिल्ली का जो भी फंड था इस साल का, एमसीडी कमिश्नर कह रहे हैं वो मिल चुका है। नॉर्थ दिल्ली का जो भी है वो भी मिल चुका है। अगर पैसा मिल गया तो वो पैसा कहाँ गया? देखिए, सच्चाई तो है, इवन आई एम आल्सो परमानेंट सफाई कर्मचारी इन ईस्ट दिल्ली। मुझे खुद आज तक सैलरी मिली तो उन्होंने कैसे एफिडेविट दे दिया? ये ऐसे ही बेकाते रहते हैं। इनके पास जाते हो कहते नहीं, उसके पास जाओ, वो कहते उसके पास जाओ। पूछेंगे कि पैसा कहाँ गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
इसके लिए भी एक अभियान चला जाएगा। उसमें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि हमारी जो निरीह बेकसूर जनता है उसको वो न प्रताड़ित हो बिना बात में।